The PPT is visible to the head and neck region. For arterial supply in the blood vessels of the head neck, take common carotid system along with part of subclavian arteries. Subclavian artery is basically the supply of artery of the upper limb. It is known as. Along with it, main supply of the head and neck region is common carotid system, the carotid system of arteries. The right and left common carotid artery, which is carotid artery and internal carotid artery. Okay, so artery, internal carotid artery. The external carotid artery, it supplies the head and neck, as its name suggests, it supplies the external part of the head and neck region, mainly head and greater part of the neck. And the internal carotid artery, it supplies within orbit. Okay, so the common carotid artery, internal carotid artery, these three together form the carotid system of arteries. Okay, next we will discuss first the subclavian artery. The subclavian artery is this artery, basically this artery is present beneath or below the clavicle. Okay, it is present in the artery of the upper limb. It also, a part of it also supplies the head and neck region, so we are discussing here a part of the subclavian artery. Okay, now the subclavian artery, the right and left subclavian artery, it is the branch, as you can see in the diagram, the right subclavian artery, it is the branch of the brachiocephalic trunk. The right subclavian artery, it arises trunk behind the right sternoclavicular joint at the root of the neck. Second, the left subclavian artery. Left subclavian artery arises directly from the arch of the aorta. The arch of the aorta, it has three branches. The three branches of arch of aorta, the left subclavian artery, left common carotid artery, and the brachiocephalic trunk. Brachiocephalic trunk gives rises to the right common carotid artery and the right subclavian artery. Subclavian artery is the branch of arch of aorta and grooves on the left, makes a groove on the left lung and enters the neck behind the sternoclavicular joint. It has the same and left beside the origin. Both right and left subclavian artery have the same course. Okay, next, as we have discussed what is the origin of the right, in the diagram you can see the right subclavian artery, it is the branch of the brachiocephalic trunk, and the left subclavian artery, it is the branch of arch of sternal angle. Your arch of aorta is present behind its origin clavicular joint behind the sterno. Now first we'll see now the termination from the specified or the mentioned origin of it will till from the origin to the outer border of the first rib. This part is known as the subclavian artery. From the outer portion of the first rib, it is known as the axillary artery. We have discussed in upper limb कि axillary artery starts from the outer rib of the outer border of the first rib. So above from is known as your subclavian artery. PPT is visible or not? Check your network connection. Chalo, as you can see in the diagram strip, अब according to scalenus anterior muscle, scalenus anterior muscle इस आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. सेम आपको याद में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट है जो आपका ओरिजिन से लेके स्केलेनस एंटीरियर मसल के जो पार्ट स्केलेनस एंटीरियर बिहाइंड द स्केलेनस मिड मसल, दैट इज योर सेकंड पार्ट, एंड फ्रॉम द lateral border of the scalenus and the muscle is scalenus anterior muscle. 3 parts, first, second and third part. Understand? आपने जब एक्सिलरी आर्टरी का आप ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, you should know basic.
राइट साइड से अगर हम स्टार्ट, ये बेसिकली आपका राइट सबक्लेवियन आर्टरी का है रिलेशन। फर्स्ट हम देखेंगे, मेन आपको दिख सकती है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी के एंटीरियर व्हाट यू कैन सी, द स्किन, mastoid muscle, anterior jugular vein, the internal jugular vein, common carotid artery, the sternohyoid and the sternothyroid muscle, the vertebral vein. This part lies in front of the or the anterior to the first part of the subclavian. Okay, so this is your, literally आप जाओ in center, स्कैलिनस एंटीरियर मसल, हमने क्या बोला, सेकंड पार्ट कौन सा पार्ट है जो स्कैलिनस एंटीरियर मसल के बिहाइंड हो। सो स्कैलिनस एंटीरियर मसल यू कैन सी, स्कैलिनस एंटीरियर मसल के बिहाइंड जो पोर्शन है, दिस इज योर सेकंड पार्ट। इट इज स्कैलिनस एंटीरियर मसल, द फ्रेनिक नर्व एंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल and behind lung and the cervical pleura with a part of the lower trunk of the brachial plexus. अब हम थर्ड पार्ट में जाएंगे। थर्ड पार्ट में स्कैलिनस एंटीरियर मसल के लेटरली जो प्रेजेंट है थर्ड पार्ट, तो उसके एंटीरियर में यू कैन सी कौन कौन से हैं, सेम वे जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था, कौन स्कैपुलर और ट्रांसवर्स सर्वाइकल और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरीज हैं, ठीक। तो दिस आर योर एंटीरियर, इट विल कम इन द एंटीरियर पार्ट, और पोस्टीरियरली यू विल सी, रिटेन कर सकते हो, उतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली सेम है। इफ़ यू विल, अगर आप याद करो जैसे हमने एक्सिलरी आर्टरी में इसके रिलेशन देखे थे, उसी तरीके से ये सारे आपके रिलेशंस हैं। सिंपल सा है, बेसिक इसका याद रखना कि 3 पार्ट्स में है। ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी का है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप जाओगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पीछे है जो, और फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मीडियल टू द स्कैलिनस एंटीरियर मसल। स्कैलिनस एंटीरियर मसल के जो पीछे है वो आपका सेकेंड पार्ट है, और उसके जो लेटरली है वो थर्ड पार्ट है। ओके, सो दिस आर योर रिलेशंस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द ब्रांचेस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। अब हमने क्या बोला, सबसे एंटीरियर मसल से फर्स्ट पार्ट जो मीडियल है स्कैलिनस एंटीरियर मसल से, स्कैलिनस मसल से जो मीडियल पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट गिव्स 4 ब्रांचेस अकॉर्डिंगली। फर्स्ट इज योर वर्टिब्रल आर्टरी। इस डायग्राम में देखो, जो फर्स्ट आर्टरी स्टार्ट हो रही है आपकी, वर्टिकल आर्टरी बिल्कुल जो जा रही है, दैट इज योर वर्टिब्रल आर्टरी। सेकेंड इज योर ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक सुपीरियर पार्ट से इस आर्टरी के सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज हो रही है, एंड फर्दर इट गिव्स ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस इट इज गोइंग टू गिव। इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स जा रही है विद अ कर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि लेटरली जा रही है, ठीक। थर्ड इज योर इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, जस्ट अपोजिट, जहाँ से थायरोसर्वाइकल ट्रंक हैज टेकन ऑरिजिन, उसके जस्ट अपोजिट इंफीरियर से आर्टरी अराइज होगा, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी और द इंटरनल मेमोरी आर्टरी। वहाँ सर्वाइकल ट्रंक आप देख सकते हो सिर्फ लेफ्ट साइड में आपके फर्स्ट पार्ट से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। सेकेंड, और जो राइट साइड में है, राइट साइड का ये ओरिजिन होता है सेकेंड पार्ट से। सो कीप पार्ट का 4 ब्रांच है। फर्स्ट, सेकेंड इज योर थायरोसर्वाइकल ट्रंक जिसके अपोजिट इंटरनल थोरैसिक आर्टरी एंड कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक ओनली ऑन द लेफ्ट साइड। अब सेकेंड पार्ट में लेफ्ट साइड से कोई बाकी कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक की, जो कि स्कैलिनस एंटीरियरली वहाँ से अराइज हो रहा है। थर्ड पार्ट गिव्स राइज टू ओनली 1 आर्टरी, विल डिस्कस द वर्टिब्रल आर्टरी। ये आपके न्यूरोलॉजिस्ट, फॉर नाउ यू शुड नो कि वर्टिब्रल आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ दी। आपको सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी से दिस इज गोइंग टू कि C1 टू C6, C6 टू C1 की फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से देखो ये पूरी क्रॉस हो रही है, C1 टू C6 टू C1। यहाँ पे जैसे ही C1 से
C1 से ये पास होगी, वहाँ से इमर्जिंग फ्रॉम द फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम ऑफ C1, यहाँ पे ये कर्व लेती है एंड इट एंटर्स इनटू द क्रेनियल कैविटी थ्रू द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के अंदर जाके यहाँ पे इट विल फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। सो दिस इज योर वर्टिब्रल आर्टरी। C6 सारे फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से क्रॉस होगी, फिर जैसे ही C1 से निकलेगी इट विल एंटर इनटू द टेकिंग अ कर्व, इट विल एंटर इनटू द फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम में एंटर करके क्रेनियल कैविटी में इट विल जॉइन विद द वर्टिब्रल आर्टरी ऑफ द अपोजिट साइड एंड फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। ठीक है, इट फॉर्म्स द बेसिलर आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स। नाउ वन थिंग यू शुड नो कि वर्टिब्रल आर्टरी के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। देखो, सबसे पहला फर्स्ट उसका ओरिजिन से स्टार्ट करो। ओरिजिन से जैसे स्टार्ट होके वो C6 की फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम पे पहुंचेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी फ्रॉम द ओरिजिन टू द फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम ऑफ द C6। ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? जो पोर्शन C1 से C6 के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से पास, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। तो सेकेंड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी आपका स्टार्ट हो रहा है फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। C1 के जैसे ही फोरामेन ट्रांसफर का वो आपको जो दिख रहा है, दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। अब जैसे ही फोरामेन में वो अपोजिट साइड ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी से मर्ज होके बेसिलर आर्टरी बनाएगा। सो दिस पोर्शन फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स, दैट इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ वर्टिब्रल। 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब ये कहीं ऐसे सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, वहाँ से स्पाइनल ब्रांचेस जाते हैं। थर्ड पार्ट से सिर्फ मस्कुलर ब्रांचेस, जो बेसिकली सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल के फोर्थ पार्ट फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स। इस पॉइंट पे इट विल गिव सम ऑफ द ब्रांचेस। यहाँ पे हम देखेंगे जो इसकी ब्रांचेस है। सबसे पहले यहाँ पे देती है मेनिंजियल ब्रांच, जो आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में इट विल गिव द मेनिंजियल ब्रांच, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये सब आपका डिस्कस होगा न्यूरो वाले। टिल नाउ यू शुड नो कि इसने स्पाइनल और मस्कुलर ब्रांचेस पहले से दी, और इसकी मेन जो ब्रांचेस आई हैं आपकी न्यूरो ब्रेन के लिए, जो आपके न्यूरो पार्ट के लिए, दैट इज फ्रॉम द फोर्थ पार्ट, द पोस्टीरियर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, मेडुलरी ब्रांचेस एंड द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, चलो वर्टिब्रल आर्टरी के 4 पार्ट्स। अब डायग्राम पे देखो, डायग्राम में आप देख सकते हैं जहाँ से ओरिजिन हुआ टिल दी एंटर इनटू दी, जहाँ पे वो एंटर करता है फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, जो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम C6 का है वहाँ तक, तो वो आपका आएगा फर्स्ट पार्ट और पहुँच रहा है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब C6 में क्या होगा? C6 के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम में, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन है ना सर्वाइकल वर्टिब्रा के, C1 से C6 में, उसमें एंटर करेगा। उस पर एंटर किया, वहाँ से वो एंटर करते हुए C1 के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम तक जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो सारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के फोरामेन C1 से लेके फोरामेन मैग्नम तक, C1 के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से जैसे ही पास होगा फिर वो जाएगा फोरामेन मैग्नम। तो C1 के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से लेके फोरामेन मैग्नम तक का जो रूट है, जो ये पार्ट है, तो दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। और जैसे ही ये फोरामेन मैग्नम में एंटर करेगा, नाउ बिगिंस द फोर्थ पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। जैसे ही फोर्थ पार्ट ऑफ वर्टिब्रल मतलब फोरामेन मैग्नम से एंटर करेगा, फोर्थ पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी हो जाएगा वो। फिर वो थोड़ा सा आगे जाके जो पॉन्स है, अपोजिट साइड जो होता है वर्टिब्रल आर्टरी का, उसके साथ ज्वाइन करता है और बेसिलर आर्टरी बनाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? 4 ब्रांच। फर्स्ट पार्ट जो कि ओरिजिन से लेके थर्ड पार्ट है C1 के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम का, फोर्थ पार्ट में फिर से डिस्कस होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट इज योर इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी ये हमने पढ़ा था थोरैक्स में। नाउ वुड आई आस्क द क्वेश्चन इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, आप बताते
इंटरनल थोरेसिक आर्टरी अराइजेस जस्ट अपोजिट, जहाँ से आपका थायरोसर्वाइकल ट्रंक अराइज हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट इंफीरियर सबक्लेवियन आर्टरी एंड enters the thorax behind the artery, lateral to the lateral border of the sternum से about 1.25 centimeter away from the lateral border of the sternum से laterally वो क्रॉस होता है, फिर सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जाके ये दो में डिवाइड होता है, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एंड द सो दिस इज योर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये हमने थोरैक्स में पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। फिर आपका पहले थायरोसर्वाइकल ट्रंक, अब सुपीरियर सर्वाइकल ट्रंक है, इट अराइजेस फ्रॉम द अपर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। आपने ये डायग्राम देखा था इसके ओरिजिन का, पहला आपका वर्टिब्रल आर्टरी था, वर्टिब्रल आर्टरी के लेजन हुआ था, ही इसका ओरिजिन होता है, वो उसके आगे जाके 3 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। आपकी पहली ब्रांच जो कंटिन्यू होती है दैट इज योर इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी बेसिकली स्केलेनस एंटीरियर मसल के, यू कैन सी इन द डायग्राम, स्केलेनस एंटीरियर मीडियल बॉर्डर के अलोंग ये असेंड करता है और C7 के पास जाके इट टर्न्स के ये वर्टिब्रल आर्टरी के फ्रंट में इट आर्टरी, ठीक है। नाउ इट डिसेंड्स और वहाँ पे वो जाके किसको सप्लाई करेगा, लोअर लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आपका थायराइड ग्लैंड डिस्कस हुआ है ना, उसमें याद है ना, लोअर लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड को कौन सा बेसिक्स हैं उनको देती हैं, जैसे असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी होती है, इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी होती है, द ट्रेकियल फेरिंजियल, ट्रेकिया इसोफेगस और फेरिंग्स को जो रेस्पेक्टिव ये सब जो लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगा, वो है एक था। पोस्टीरियर ट्रायंगल में जब हमने देखा था ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी आपका थायरोसर्वाइकल ट्रंक से रीचेस द पोस्टीरियर ट्रायंगल एंड इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल। यहाँ पे आगे चल के वो सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में डिवाइड होके अकॉर्डिंगली वो ये बाकी आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस करती। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स द आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द अपर लिम्ब स्कैपुला। आपको याद आया, सो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी सेम वे ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी के अलोंग ही वैसे ही पैरेलल वो लेटरली इट पासेस टू द सुप्रा स्कैपुलर नॉच ऑफ द फॉर्म करेगा। सो आपकी थायरोसर्वाइकल ट्रंक की 3, ठीक। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट में क्या बोला में इट इज अ ब्रांच फर्स्ट पार्ट ऑफ जो आपका लेफ्ट साइड में इट इज अ ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और राइट साइड में इट इज अ ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। कॉस्टल सर्वाइकल ट्रंक की बेसिकली 2 ब्रांचेस, द आर्टरी डीप सर्वाइकल आर्टरी इट हम आगे देखेंगे और इट एनास्टोमोस विद द ऑक्सीपिटल आर्टरी और जो आपकी सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है। फिर थोरैक्स याद करो क्या था उसमें, बिटवीन द नेक ऑफ द फर्स्ट 2 रिब, इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ द फर्स्ट 2 रिब ये जाती है एंड इट गिव्स राइजेस टू द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। फर्स्ट इन 2 इंटरकॉस्टल स्पेसेस में क्या ओरिजिन देगी, द डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से पास करके डेड ऑफ द स्कैपुला में पहुंच के अलॉन्ग विद द डॉर्सल एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। सुपीरियर पार्ट से आया था आपका सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और मीडियल बॉर्डर से आता है आपका डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी एनास्टोमोसिस, ठीक है। नाउ हमने क्या क्या देखा अभी, ठीक है। राइट में कहाँ आर्टरी, फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ से ओरिजिन होगा, टर्मिनेट कहाँ होगा, आउटर स्ट्रिप, वहाँ से वो किस नाम से कंटिन्यू होगा, दैट देन इट इज नोन एज एक्सिलरी। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 3। फर्स्ट स्केलेनस एंटीरियर मसल के जो बिहाइंड थर्ड पार्ट उसकी ब्रांचेस इन फर्स्ट पार्ट से इंपॉर्टेंट जो जा रही है वर्टिब्रल आर्टरी सर्वाइकल ट्रंक, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी एंड ट्रंक ऑफ लेफ्ट साइड। सेकेंड पार्ट से कोई ब्रांच पार्ट से आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से ली, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिन निकल वर्टिब्रा C6, C5, C4, C3, C2, C1 सारे फोरामेन ट्रियम से क्रॉस होगी, फिर एंटर करेगी फोरामेन मैग, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी और आगे चल के वो वर्टिब्रल आर्टरी अपोजिट साइड्स के साथ एक्सिलर आर्टरी बनाएगी। इंटरनल
थायरोसर्वाइकल ट्रंक की 3 ब्रांच, स्कैपुलर आर्टरी। कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक की 2 ब्रांचेस, द डीप सर्वाइकल आर्टरी एंड द सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। और थर्ड पार्ट की एक ही ब्रांच है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी विल टेक पार्ट इनटू द आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। क्लियर है? ये हुआ आपका सबक्लेवियन आर्टरी। अब अगली कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होता है आपका राइट और लेफ्ट साइड का कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दे आर दी चीफ नेक रीजन। जो आपका फर्स्ट डायग्राम एक्चुअली राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, आर्च ऑफ aorta. It ascends back to the left sternoclavicular joint and ends. Right common carotid, it arises from the brachiocephalic trunk. Brachiocephalic trunk की 2 branches, right subclavian artery and right common carotid artery. This both artery enter into the right and left neck region. कहाँ से शुरुआत हो रही है? Behind the sternoclavicular joint और further ये जाके जो upper border of lamina of thyroid cartilage है, इस पर opposite to the disc of C3 and C4 cervical dividing into 2 artery। एक जाके lamina of thyroid cartilage में पहुंचेगा, इसका लेवल क्या है? C3, डिस्क ऑफ बिटवीन दी C3 एंड C4 वर्टेब्रा। उस लेवल पे जाके ये टू वे टर्मिनेटेड बाय डिवाइडिंग टू ब्रांचेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक, कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इट लाइज इन फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द लोअर 4 सर्वाइकल वर्टेब्रा, लोअर 4 C7, C6, C5, C4, इन चारों के सामने लाई करता है। इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लोअर 4 सर्वाइकल वर्टेब्रा, in front of transverse process of lower cervical vertebra it will lie and under the cover of sterno की 2 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो हमें आपका मेन डिस्कस होगा। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी न्यूरो में पूरे डिस्कस होगा, हम इसका सिर्फ सुपरफिशियल आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इट इज़ वन ऑफ द 2 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द कॉमन कैरोटिड, देता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। वाई डू वी से इट इन एक्सटर्नल कैरोटिड है और नेक को, तो एक्सटर्नली सारे स्ट्रक्चर्स को, सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसका एक मेन रिलेशन होता है, फर्स्ट इसका सर्वाइकल वर्टिब्रा के डिस्क के लेवल, मतलब आउटर बॉर्डर ऑफ दी अपर बॉर्डर ऑफ दी लमाइना ऑफ थायराइड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इस पोर्शन आर्टरी दिस विल क्रॉस और ये अपवर्ड कंटिन्यू, ये अपवर्ड बिल्कुल जाके टर्मिनेट होके पैरोटिड ग्लैंड, अगर सब पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड को ये पेयर्स वहाँ सब्सटेंस में जाके 2 में डिवाइड होता था, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैग। ठीक, वहाँ पे ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस देता है, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड दी मैक्सिलरी आर्टरी। चलो अब नाउ यू कैन सी दी डायग्राम। अब इसके हम देखेंगे ब्रांचेस। यहाँ पे इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, 2 में डिवाइड हुआ आपका, एक इंटरनल कैरोटिड हो गया और मिडिल है आपका एक्सटर्नल कैरोटिड। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होता है उसकी पहली 3 ब्रांच है, एंटीरियर ब्रांच। ठीक है, 3 ब्रांच एंटीरियर में दिया, 3, 2 ब्रांच वो पोस्टीरियर में देता है। ठीक, 1 ब्रांच देता है, तो 3, 2, 1, 2। ठीक, तो पहला ब्रांच आएगा आपका दिया। सारे अब आपको ऑलमोस्ट सारी आर्टरीज अपने रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट व्हाट इज योर फेशियल आर्टरी, 3 आपकी एंटीरियर ब्रांचेस हैं एक्सटर्नल आर्टरी की। वन पार्ट यू शुड नो, इससे पहले ब्रांचेस से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का कभी भी स्ट्रेट कोर्स नहीं होता। इसका क्या है, देन इट कर्व्स एंड लाइज टू दी मतलब एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, एक कर्व्ड कोर्स। फिर अब ये वाला डायग्राम इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको हौच-पौच करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ हमने जो
पहले हमने देखा 3 2 1 2, उसके अकॉर्डिंग हम सारे डायग्राम को हमको सिर्फ कोरिलेट करना है, फिर वो बाकी आपको आर्टरीज याद आते जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर्स इस डायग्राम है। एंटीरियर की 3 ब्रांच, ठीक। फर्स्ट ब्रांच है, आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट ब्रांच इसने दी है सुपीरियर आर्टरी। याद है आपका थायराइड का लेक्चर, उसमें सुपीरियर लोब जो अपर लोब है उसको कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ पे जो टिप के बिल्कुल नीचे से राइज होगी और अलोंग विथ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ये कहाँ पे जाएगी, ग्लैंडुलर ब्रांचेस के साथ। अब अलोंग विद ग्लैंडुलर ब्रांचेस यहाँ देख सकते हो आप, इसके और भी बहुत सारी कुछ ब्रांचेस निकली हैं। तो खुद सोचो, हम अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें चीज़ है, जैसे कि एक तो देखा हेड बोन भी है, तो उसकी एक ब्रांच क्या जा रही है, इंफ्राहायोइड आर्टरी। लैरिंग्स है तो सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी। क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे, तो क्रिकोथायरॉइड ब्रांच भी जा रही है। ग्लैंडुलर ब्रांच तो ये डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड को दे रही है, और इसकी यहाँ पे एक डीप सर्वाइकल आर्टरी वाली भी ब्रांच आ रही है, ठीक है। सो इट्स है, फिर यहाँ पे क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन है, जिनको इंपॉर्टेंट जाना है स्ट्रक्चर, तो ये इसको क्या थायराइड को इंफ्राहायोइड आर्टरी देगी क्योंकि नीचे से जा रही है, ठीक है। हमने क्या बोला, इसका ओरिजिन कहाँ है, टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हायोइड के बिलो, उसके नीचे पे वहाँ पे ओरिजिन हुई है एक्सटर्नल कैरोटिड से। तो ये किसको सप्लाई करेगी, इंफ्राहायोइड आर्टरी। क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन को है, तो ये है आपका क्रिकोथायरॉइड ब्रांच, ये आर्टरी। अब आप देख सकते हो बिल्कुल का आर्टरी इस डायग्राम में देखो, पहली हुई आप क्या करो, यहाँ पे जो एल लिखा है दैट इज योर लिंगुअल आर्टरी। अब लिंगुअल आर्टरी में आप देख सकते हो बिल्कुल ग्रेटर कॉर्नू ऑफ के टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नू ऑफ के हायोइड से बिल्कुल अपोजिट में अराइज हुई। ये बेसिकली किसको सप्लाई करेगी, लिंगुअल, तो किसको सप्लाई करेगी, टंग को, ठीक है। अब आगे चल के लिंगुअल आर्टरी में हम डिस्कस करेंगे। जो लिंगुअल आर्टरी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बाय द हायोग्लॉसस मसल। सेम वे जैसे डिवाइड करती है, उसके मीडियली जो है वो फर्स्ट पार्ट, उसके डीप में जो होगी वो सेकेंड पार्ट, और इसके जो मीडियली होगी फिर वो थर्ड पार्ट, लेटरल, मीडियल और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट। इसमें देखो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो अब देखो फर्स्ट की, हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट लिंगुअल आर्टरी की, यू कैन सी जैसे ये कमेंस कर रहा है, जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक लूप फॉर्म होता है। ये लूप आप देख सकते हो लिंगुअल आर्टरी में, ये जो लूप है एक्चुअली में, दिस लूप इज फॉर्म्ड अबोव द, एक कॉन्वेक्सिटी फॉर्म होता है ग्रेटर कॉर्नुआ के अलॉन्ग। ग्रेटर कॉर्नुआ के अलॉन्ग ये एक कॉन्वेक्सिटी है। ये जो लूप फॉर्म हो रहा है, ये आपके हायोइड बोन के फ्री मूवमेंट को परमिट करता है, ठीक है। ये जो लूप फॉर्म हुआ लिंगुअल आर्टरी का जैसे ही शुरू हुआ है, ठीक, यू शुड रिमेंबर, यहीं से हाइपोग्लॉसल नर्व सुपरफिशियली क्रॉस होती है। तो लिंगुअल आर्टरी की बेसिकली 3 ब्रांचेस। अब हायोइड को इंफीरियरली किसने दे दिया था, इंफ्राहायोइड आर्टरी ब्रांच किसकी थी, फर्स्ट ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी की। अब हायोइड ब्रांच के सुपीरियरली कौन उसको देगा, लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी ब्रांच देती है सुप्रा टंग को और आपकी सब तो ये आपकी ब्रांचेस होती हैं लिंगुअल, ठीक। फेशियल, अब फेशियल आर्टरी में ख्याल से सबको याद होनी चाहिए। हमने ये पूरी फेशियल, हाँ लेबियल आर्टरी वी आर डिस्कसिंग, हमने जो डिस्कस किया था आपको अगर याद होगा, फेस टिप ऑफ कॉर्नुआ और ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन। फेशियल आर्टरीज का टॉर्चरस कोर्स होता है क्योंकि फेशियल मसल्स के अलॉन्ग इसका एक पार्ट आपके नेक में रीजन में होता है, तो दैट इज योर सर्वाइकल पार्ट, और जो पार्ट इसके फेस में होता है दैट इज योर फेशियल पार्ट। जो नेक रीजन में होता है वो अब यहाँ पे जो भी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको सप्लाई करता है। जैसे एक ब्रांच इसका देता है, आप यहाँ पे देख सकते हो एपी लिखा है, ये देखो ये आपकी फेशियल आर्टरी है, एंटीरियर ब्रांच की थर्ड है। अब इधर इसी को कंपेयर करो, ये आपकी फेशियल आर्टरी पैलेट को गई, फिर यहाँ पे टॉन्सिल्स भी लाई की थी ग्लैंडुलर ब्रांच इसकी, और यहाँ पे ये सब मेंटल रीजन है, तो सब मेंटल आर्टरी, ये सब इसके नेक वाले सर्वाइकल पार्ट से इसके ब्रांचेस जा रहे हैं, ठीक। तो ये हुई आपकी फेशियल आर्टरी, फेस में जाती है, लिप्स के है, फिर इट विल कंटिन्यू अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द नोज एज द, फिर वहाँ पे वो देगी एंगुलर वो आर्टरी है वहाँ पे, और वो जाके फाइनली किसके साथ एनास्टोमोस करती है, डॉर्सल नेजल आर्टरी।
सो दिस इज योर फेशियल आर्टरी। एक बार आप फेस रिवाइज करोगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा इसका कोर्स, एक सर्वाइकल और एक फेशियल। हमने फेशियल पार्ट को मेनली डिस्कस, तो सर्वाइकल से वहाँ पे जो भी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है उनको ब्रांच दे दिया। सब मेंटल रीजन है वहाँ पे, तो इन सबको रिलेटेड की 3 ब्रांच है, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल एंड फेशियल। 3 फिर हम ब्रांचेस की एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 3 ब्रांचेस तो हुई इसकी, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल। फिर हमने बोला 2 ब्रांचेस जाती है इसकी पोस्टीरियरली। अब इस डायग्राम में देखो 2 पैरेलल आर्टरी पोस्टीरियर ब्रांचेस की निकल रही है। फर्स्ट इज योर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड सेकंड, इसमें देख सकते हो पहला है आपका पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, इस होता है अबो दी ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और यह दी कैपुलर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी से अराइज होता है आपका ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अब ये देखो, ये यहाँ पे बिल्कुल मेस्टॉइड प्रोसेस के अलोंग रन्स, मेस्टॉइड प्रोसेस के डीप में उसको ग्रूव करके वो आगे अलोंग मूव करता है और स्कैल्प तक ये पूरा मूव करके वहाँ स्कैल्प इस मसल है उसके अलोंग पूरा ये आर्टरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो ब्रांच था उसका एक डीप सर्वाइकल जो पार्ट था। तो आपको सिर्फ याद रखना है 2 पोस्टीरियर ब्रांच है आपकी ऑक्सीपिटल आर्टरी, 3 2 1 2, तो हमारा 3 ठीक है, 2 अब 1 आएगा। 1 मतलब आपका यहाँ पे इस डायग्राम में एक मीडियली एक छोटी सी स्लेंडर अपवर्डर सी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, जो नीचे से अराइज होगी, मीडियली अराइज होगी और वर्टिकली अपवर्ड्स बेस ऑफ आर्टरी के बिल्कुल साथ में ये जाती है एक्सटेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। अब एज इट्स नेम सजेस्ट, ये किसको किसको सप्लाई करेगी, फेरिंग्स को सप्लाई करेगी। एसेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी है तो फेरिंजियल ब्रांच देगी, प्रीवर्टिब्रल ब्रांच देगी, मेनिंजियल, इंफीरियर टिम्पैनिक और पैलेटाइन ब्रांचेस देती है। ठीक है, तो 3 2 1 2। लास्ट का 2 जो है वो आपके 2 टर्मिनल ब्रांचेस के लिए है। पहला आएगा आपका सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और सेकंड है आपका मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी हम होता है बेसिकली, ये जो होता है छोटा कंटे जो सुपीरियर सुपरफिशियल मैंडिबल इस डायग्राम में देखो, और इसके पीछे ही जो कंटिन्यूस हो रही है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल है। सुपरफिशियल टेम्पोरल के उससे वर्टिकली अपवर्ड्स जाए, जहाँ पे ये जाइगोमैटिक आर्च का आपका ये रूट ऑफ जाइगोमा यू कैन फील इन फ्रंट ऑफ द ट्रैगस, आपके ईयर ये इसके सामने जिसकी ये ट्रैगस जो एरिया है उसके इन फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो यू कैन फील दी पल्सेशन। और आगे चल के ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर ब्रांच और एक एरिया में। एक है आपका ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, एक है एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, द जाइगोमेटिको ऑर्बिटल, ये और आपका जाइगोमेटिको फेशियल है, डीप है और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांचेस हैं। तो ये सब इसके ब्रांचेस इसने दी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना जो एंटीरियर और इसकी पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांचेस हैं, जो आपकी एंटीरियर ब्रांच है वो आपके टेम्पोरल रीजन को देगी। इसको ध्यान रखना, मैं इसके अप्लाइड में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो एंटीरियर ब्रांच है वो आपके टेम्पोरल रीजन को देगी और जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो आपके स्किन को और ऑरिकुलर मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, अब अगर आपने कभी ध्यान दिया एकदम डायलेटेड एक वेसल दिखता है आपको, इवन जो इंक्रीजिंग जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें भी ये बिल्कुल टॉर्चर दिखेगा आपको टेम्पल रीजन में। सो दिस इज योर एंटीरियर टर्मिनल, बेसिकली आपको दिखता है ना वो है। ठीक है, चलो अब हम आगे आएंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आपकी ब्रांच किसकी है, कॉमन कैरोटिड, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टोटल ब्रांचेस हैं 8। कैसे, 3 2 1 2, 3 ब्रांचेस एंटीरियर, 2 ब्रांच पोस्टीरियर, 1 ब्रांच मीडियल एंड 2 ब्रांच टर्मिनल। 3 2 1 2। 3 सुपीरियर थायराइड किसको सप्लाई करेगी, अपर लोब फेशियल फेस को। तो 3 ब्रांचेस एंटीरियर, 2 ब्रांच है पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल, ये सप्लाई करेंगे बैक ऑफ द स्कैल्प और पोस्टीरियर ऑफ द ईयर ऑरिकल्स को। आपकी असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी सप्लाई करेगी बेसिकली फेरिंग्स को।
फिर इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस, मैक्सिलरी आर्टरी आ जाए आपकी मैक्सिला में और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन से जाके सप्लाई करेगी ये टेम्पल रीजन को। ये क्लियर हुआ सबको? थी एक एक्सटर्नली स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही थी और दूसरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो इंटरनली आपके बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन है उसको और ऑर्बिट को। बोथ राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस ओरिजिन राइट और लेफ्ट का अलग है, बट इनका कैसे इनका डिवीजन जो राइट और लेफ्ट में वही इंटरनल और वही एक्सटर्नल जो उनकी अपनी अपनी है वो सेम। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सेम वे कहाँ पे जैसे डिवाइड कहाँ होती कॉमन कैरोटिड सी, याद रखना कहाँ से डिवाइड हुई थी कॉमन कैरोटिड, इस पॉइंट पे जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई और फिर वो जाके डायरेक्टली बेस करेगी। अब बेस ऑफ द स्कल में जैसे ही अगर तो उसके कैरोटिड कैनाल में ये एंटर करती है और उस पेट्रस पार्ट में अंदर कोर्स को फॉलो करती है, फिर अंदर फॉलो करके इट विल कम आउट फ्रॉम दी फोरामेन लैसरम और फोरामेन लैसरम से ये एंटर करेगी क्रेनियल कैविटी में और वहाँ जाके फिर वहाँ से कैवर्नस साइनस से सब्सटेंस के पास ये दो में डिवाइड होती है एंड सप्लाई करता है। ठीक है, सो दिस इज योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एड हुई थी C3 C4 के डिस्क के लेवल पे। जब कैनाल तक रीच करेगी ये पार्ट जो उसका नेक में पोर्शन में प्रेजेंट है, दिस इज योर सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये जो सर्वाइकल पार्ट जो इसके नेक रीजन में प्रेजेंट है यहाँ पे इट विल नेवर गिव, इसमें देख सकते हो इसमें कोई ब्रांच नहीं देती वो, और यहाँ पे ये कैरोटिड शीथ के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे, एक कैरोटिड शीथ होता है उसके अंदर एनक्लोज होती है अलोंग विथ इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व, इनके अलोंग ये इसके साथ ये पे एनक्लोज होता है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर ये वाला इसका जो सर्वाइकल पार्ट है इसका हम रिलेशन आगे इंटरनल जुगुलर वेन में डिस्कस करेंगे, इसके यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं होते। अब जैसे ही वो बेस ऑफ द स्कल में पहुँचा वहाँ पे एक कैरोटिड कैनाल होता है, कैरोटिड कैनाल में ये एंटर करते हुए ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से क्रॉस होता है और फोरामेन लैसरम से निकलता है। तो ये वाला पोर्शन जो उसके पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे अब ब्रांचेस क्या देंगी, पेट्रस पार्ट ऑफ टिम और एक टेरेगोइड ब्रांच। ठीक है, टेरेगोइड कैनाल में जो जानती थी विविडियंस नर्व अगर उसमें आपको थोड़ा उसकी जो जाती थी दैट इज योर टेरेगोइड ब्रांच। अब यहाँ से निकल के जैसे ही फोरामेन लैसरम से एंटर करके स्कल में आता है, नाउ यू रिमेंबर दी कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस में आपको पता है उसके अलोंग वहाँ पे अंदर में क्या थी, इट लाइज इनसाइड, वहाँ पे क्या था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अलोंग विद एब्ड्यूसेंट नर्व। सेला टर्सिका के साइड ऑफ द वॉल में मीट कैवर्नस साइनस, दिस इज योर कैवर्नस पार्ट। कैवर्नस साइनस के रूफ से इमर्ज आउट होती है क्लाज्मा के अलोंग, वहाँ पे एक एंटीरियर परफोरेटेड सबीरियर से आपके सेरिब्रम न्यूरो पार्ट में पूरा ये फिर से आएगा जब आप ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन और कैसे जैसे ही कैवर्नस साइनस को लीज करती है तो ये सप्लाई करती है ऑप्थैल्मिक आर्टरी, क्योंकि हमने अगर इंटरनल कैरोटिड शुरू किया तो हमने क्या बोला था ये बेसिक दिस सप्लाइज दी, यहाँ पे एक ऑप्थैल्मिक आर्टरी भी ब्रांच देती है, एंटीरियर कोरोइडल। टर्मिनल ब्रांचेस कौन से, इंटीरियर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये आपका ब्रेन में फिर से डिस्कस होगा इंटरनल कैरोटिड रखना। सा पॉइंट अगर आपको कैवर्नस साइनस याद है तो कैवर्नस साइनस के अलोंग जब ये पास होती है, ठीक है, साइनस के अलोंग होती है तो यहाँ एक यू शेप बेंड फॉर्म इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो ये बेंड है दिस इज नोन एज कैरोटिड साइफन यहाँ होती है, यहाँ पे इसकी पल्सेशन फील होती है और जब सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती है ये फीचर होता है क्या सेरिब्रल एंजियोग्राफी में। ठीक है, इसके बाद एक सिर्फ ये स्ट्रक्चर है ये आपके वाइवा में, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। C3 C4 ऑर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, लमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज में। अब इन दोनों के बीच में कुछ स्टाइलॉइड प्रोसेस से दो मसल्स हैं, स्टाइलोग्लॉसस मसल है और स्टाइलोफेरेंजियस मसल है, और सिंपल दो नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ठीक, तो स्ट्रक्चर्स पासिंग बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब आएंगे हम वीनस सप्लाई ऑफ द हेड एंड नेक रीजन। सेम वे इसके मेजर वेन्स internal jugular, external jugular and the internal external jugular vein, same way आप किसे external jugular vein और anterior jugular vein आपका।
अब ये ध्यान रखना कि जब हमारी पूरी में वहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं बट मोस्टली एब्सेंट होते हैं, मोस्टली, ठीक है। ईजिली आपका इन्फेक्शन है वो ईजिली आपके इनसाइड जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। इसमें एंटीरियर जुगुलर वेन का नहीं। आ जाओ सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन एक्चुअली में किसका कंटिन्यूएशन होता है, ये भी आपके अपर लिम्ब में आपको ध्यान होगा। आपका बेसिकली एक्सिलरी वेन जो होता है वो आगे किस में ड्रेन करता है, कंटिन्यूस किस में होता है आपका, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी वेन और एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप टू द मीडियल। यहाँ जुगुलर वेन इंटरनल जुगुलर वेन के साथ मीट करके ये फॉर्म करता है राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक। तो बेसिकली अब सब क्लेवियन वेन एक्चुअली किस लिम्ब को ड्रेन करता है। अब इसकी ट्राइब्यूटरीज सिंपल सी है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, डॉर्सल स्कैपुलर वेन, थोरैसिक डक्ट ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट होगा, एंटीरियर जुगुलर वेन एंड सेफेलिक वेन। ये सब आपके अपर लिम्ब से रिलेटेड है सारे वेन्स। यस, इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक। सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन में आपने देख लिया इसका एक्सटेंट और इसका ट्राइब्यूटरीज रिलेशंस बहुत सिंपल है। इसमें सब आपको ध्यान क्या रखना है आता है। और सभी आर्टरी इसकी बिल्कुल जैसे ही सब क्लेवियन आर्टरी की आर्चिंग होती है उसके बिलो होती है, ठीक है। तो इसकी बिहाइंड क्या है, सब क्लेवियन आर्टरी और अपेक्स ऑफ द लंग, ठीक हो गया आपका सब क्लेवियन वेन। नेक्स्ट आ जाओ इंटरनल जुगुलर वेन। दिस इज योर इम्पॉर्टेंट। जैसे इसमें हमने देखा था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वेन्स में जब हम आएंगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन आपके हेड एंड नेक रीजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है। अब इस डायग्राम पे आप ये डायग्राम आता है तो आपका पूरा इंटरनल जुगुलर वेन इसी डायग्राम आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। ये लार्जेस्ट वेन है हेड एंड नेक रीजन का, ठीक है। इट बिगिंस एज द, याद हो हमने जो पढ़ा था हेड एंड नेक रीजन में ड्यूरल साइनस, हमने वहाँ पे देखा था सिग्मॉइड साइनस जुगुलर फोरामेन से निकल के इट इज कंटिन्यूस एज वेन। तो राइट और लेफ्ट सिग्मॉइड साइनस जो है वहाँ से ये कंटिन्यूस होगा जुगुलर फोरामेन से निकल के, इट विल बी कंटिन्यूस एज इंटरनल जुगुलर वेन। अब आप देख सकते हो वो जुगुलर फोरामेन से निकला और वो निकल के वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाएगा और बिल्कुल स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बिहाइंड वहाँ करेगा। तो आपका जो लेफ्ट वाला होगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और राइट वाला राइट सबक्लेवियन वेन के साथ ड्रेन करके ये क्या बनाएगा आपका इंटरनल जुगुलर वेन। अब आप इसमें देख सकते हो राइट और लेफ्ट, जो राइट वाला होगा राइट सिग्मॉइड साइनस किससे ड्रेन होता है, इट विल ड्रेन दी इंफीरियर सैजिटल साइनस सुपीरियर। इस कारण हमारा राइट जो आपका जुगुलर वेन होता है इंटरनल जुगुलर वेन वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन। में सबसे पहले देखो कि आपको इंटरनल डायलेटेशंस दिख रहे हैं। एक जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब बस जस्ट जो जुगुलर फोरामेन है वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक इसकी वो दिख रही है, एंड कर रहा है जहाँ पे वो ड्रेन कर रहा है वहाँ पे एक डायलेटेशन दिख रही है। कमेंसमेंट पे है दैट इज योर सुपीरियर बल्ब, और ड्रेन वाले जहाँ पे वो ड्रेन कर रहा है एंडिंग पॉइंट पे है इंफीरियर बल्ब रिलेटेड होता है, और नीचे वाला जो इंफीरियर बल्ब है वो ड्रेन दो। तो यहाँ पे इंफीरियर बल्ब के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग इट इज एनक्लोज्ड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व एक फेशियल शीथ के अलॉन्ग कवर होते हैं, दैट इज योर कैरोटिड शीथ। एक बार और हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैरोटिड शीथ। इसके पूरी जो इसका कोर्स है इसके अलॉन्ग इसके वहाँ पे लाई करता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, पूरी इसके कोर्स के अलॉन्ग लाई करेगा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ईजिली आप इसके नॉर्मल्स में, एक नॉर्मल लाइव ह्यूमन बॉडी में आप इसको ईजिली इसके कोर्स को डिपिक्ट कर सकते हो। कहाँ से होगा, टिप ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस, एंगल ऑफ द मैंडिबल और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इस लाइन टिप ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस, बिहाइंड द ईयर्स आपका मेस्टॉइड प्रोसेस है, टिप से वहाँ से है, फिर एंगल ऑफ द मैंडिबल और नीचे स्टर्नोक्लेविकुलर। तो ये आपका एक साथ इंटरनल जुगुलर वेन के रिलेशंस, अगर आपको एक बार आपका फर्स्ट वाला है सुपरफिशियल रिलेशन में यूजुअली आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे क्या सिचुएटेड है। शुड नो सुपरफिशियली आप देख सकते हो इसमें बेसिकली इंटरनल जुगुलर वेन के सामने से दो मसल्स क्रॉस हो रही है, ठीक है।
दो मसल है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। दो आर्टरीज क्रॉस हुई है, पोस्टीरियर आर्टरी। दो नर्व्स हैं यहाँ पे, बेसिकली स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, ऊपर ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है और नीचे इंफीरियर रूट ऑफ अंसा सर्वाइकैलिस। ठीक है, तो ये सारा है। इसके आगे एक और हम डिस्कस करेंगे इसका रिनल कैरोटिड आर्टरी और इनके बीच। ये सुपरफिशियली है, दो मसल, दो आर्टरी, सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल और उस एरिया पे जो मसल्स हैं वो इसके बेसिकली पोस्टीरियर, स्केलेनस मीडियस है, स्केलेनस एंटीरियर है, सारे मसल ट्रंक होगा आपका। में यहीं पे वर्टिब्रल आर्टरी भी होती है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। ये सब लाई करेंगे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। ये सब दो नर्व्स आपके पोस्टीरियरली जो पोस्टीरियर रिलेशन है सारे वो सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल और पीछे डीप नेक के जो पोस्टीरियर के मसल्स हैं, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस, एटलस का प्रोसेस, लीवेटर स्कैपुली, स्केलेनस मीडियस, स्केलेनस एंटीरियर। नर्व कौन सा था? बिल्कुल सर्वाइकल प्लेक्सस, फ्रेनिक नर्व आर्टरी में, वर्टिब्रल आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, थोरैसिक। इसका इंटरनल मीडियली इसका क्या रिलेशन होता है? डायग्राम आपका मिस हो गया इसमें। यहाँ पे मीडियली इसका एक रिलेशन होता है जो आपका एक्चुअली ये रिलेशन डायग्राम आपका यहाँ पे मीडियल उसका रिलेशन का रहता है। मीडियली ये रिलेटेड होता है। आईजेवी इज रिलेटेड टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, 9th, 10th, 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व। 9th, 10th, 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अपर में। और आप नीचे पार्ट में, लोअर पार्ट में जाओगे तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, ठीक है, आर्टरी और 9th, 10th, 11th, 12th जो आपका क्रेनियल नर्व है वो अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में मीडियल रिलेशंस में। ठीक है, अब आ जाओ कौन कौन देगा, तो वहां पे इसकी फर्स्ट ट्राइबिटरी क्या होती है? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। फिर नीचे आ जाओ फेरेंजियल वेन्स, कॉमन फेशियल वेन्स, क्योंकि ये पूरे हेड एंड नेक रीजन का मेन वेन है, मतलब मेन एक मेजर वेन है जो सबको ड्रेन करेगा। तो इस रीजन में जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है सारे विसरस से ड्रेन करके क्या आएंगे? वो डायरेक्टली आईजेवी में आएंगे। तो फेरेंजियल वेन्स, कॉमन फेशियल वेन, लिंगुअल वेन, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन, ठीक है, और ऑक्सीपिटल वेन। आपने जितनी आर्टरीज पढ़ी है उसी की कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स हैं जो डायरेक्टली ड्रेन कर रही हैं आईजेवी में। ठीक है, और जहाँ पे ये एंड होता है, जहाँ पे ये डायरेक्टली अपना ड्रेन करता है सबक्लेवियन वेन उसमें, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट साइड में थोरैसिक डक्ट ड्रेन करता है और राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट इसमें ड्रेन करता है। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन, कभी ऑब्लीक जुगुलर वेन, एज यू कैन सी इन द डायग्राम आप में देख सकते हो कि एक ऑब्लीक वेन से इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन ऑफ द एक डायग्राम इंटरनल जुगुलर वेन का याद है तो आप इसके सबसे पहले है, ठीक है, कैरोटिड शीथ है और सर्वाइकल, दो आर्टरी और एक वेन है और डीप में सारी मसल्स हैं और बैक पूरी। सो दिस कंप्लीट्स योर आईजेवी। एक्सटर्नल का एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने फेस में पहले तो सुपरफिशियल और मैक्सिलरी वेन ड्रेन करके पहले वो क्या बनाएंगे? सुपरफिशियल और रेट्रोफेशियल वेन मिलके एक्सटर्नल जुगुलर वेन मिलके यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हुआ है? ये वेन इट विल डायरेक्टली ड्रेन इनटू दी सब आपका इंटीरियर जुगुलर वेन्स इंडिकेट करता है, और डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट एक जो चीज़ है आपकी कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ, अब ध्यान रखो इसी का एक डायग्राम एक्चुअली मिस हुआ है। कैरोटिड शीथ बेसिकली इट इज़ अ फेशियल शीथ जो बेस ऑफ द स्कल से लेके अबो द आर्च ऑफ एओर्टा तक कंटिन्यू होती है। ठीक है, अब बेस ऑफ स्कल में वो कैरोटिड कैनाल जो जुगुलर फोसा है वहाँ पे अटैच होती है और नीचे आप आएंगे क्लोज करेगी। ये बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अपर पार्ट में, इंटरनल कैलर वेन और लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व्स को एनक्लोज करेगी। ठीक, अब इसकी पोजीशन मतलब इसका रिलेशन अगर देखें तो मीडियली फेरिंग्स है, लेटरली स्टेलाइड अपैरेंट, टीरियर टू दी इंफ्राटेम्पोरल फोसा। जब हम हमारा नेक फोसा और टेम्पोरल फोसा उसमें हम एक बार और डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, इसका रिलेशन जो है वो मैं डायग्राम याद से आपसे डिस्कस कर लूँगी ये वाला।
ठीक। और लोअर पार्ट में इट विल एनक्लोज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड द वेगस नर्व। चलो अब हम जो बेसिकली हमारे हेड क्यों पैटर्न होता है स्प्रेड होने का, क्यों, क्योंकि मेटास्टेसिस से तो लिम्फ नोड्स के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम अगर आपको टर्मिनेट करनी वहाँ पे करना है तो आप सर्जरी, ऑन्को सर्जन्स बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी डिजायर्ड लिम्फ नोड्स होते हैं उनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो उससे आपकी बहुत ईजिली आप यू कैन रेस्ट्रिक्ट दी कैंसरस ग्रोथ। चीज़ कभी भी अगर यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये डायरेक्टली आपको उस लिम्फेटिक पर्टिकुलर उस एरिया जो जहाँ पे वो पर्टिकुलर जिस लिम्फ नोड को ड्रेन करेगा उसमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो दिस विल हेल्प यू टू इन द डायग्नोसिस, ये आपको एक फीचर्स में आ जाता है, इसके डायग्नोसिस के लिए भी हेल्प करता है आपके कैंसरस ग्रोथ के। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखो, जो हमारा बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में अगर हम बोलें जितने लिम्फ नोड्स हैं उसका मतलब अगर हम अराउंड 800 लिम्फ नोड्स में 300 सिर्फ आपके हेड एंड नेक रीजन के लिए ही प्रेजेंट हो, रीजन को जो लिम्फेटिक डक्ट है। हाँ, अब इसका सबसे पहला ड्रेनेज, या आपने जैसे में पढ़ा है आईजेवी में हमने क्या बोला था, इसकी सारे बेसिकली जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, राइट लिम्फेटिक थोरैसिक डक्ट। अगर आपको लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा भी ध्यान हो, बहुत अर्लियर हमने जो पढ़ा था, तो जो लेफ़्ट साइड का थोरैसिक डक्ट है वो लेफ़्ट साइड के सबक्लेवियन वेन में डायरेक्टली ये ड्रेन कर रहा है, सॉरी आईजेवी में और सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर रहा है। और जो राइट साइड का होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट, इट विल ड्रेन इनटू दी ये जंक्शन पे सबक्लेवियन वेन और आईजेवी। ठीक है, अब जो लिम्फ नोड्स हैं हमको हेड एंड नेक रीजन के, इसको फर्स्ट इज योर पेरिफेरल लिम्फ नोड्स, देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका लिम्फ नोड्स, एज इट नेम सजेस्ट, जो आउटर सुपरफिशियली प्रेजेंट है वो है आपका पेरिफेरल लिम्फ नोड्स। जो आपके डीप में प्रेजेंट होंगे वो आपके डीप टर्मिनल लिम्फ नोड्स। तो पहले आएंगे हम पेरिफेरल लिम्फ नोड्स। पेरिफेरल लिम्फ नोड्स में भी ये 2 सर्कल में अरेंज हुआ है। पहला होता है आपका आउटर सर्कल, यू कैन सी, और उसके अंदर फ्रॉम चिन टू दी ऑक्सीपिटल एरिया, यहाँ पे आप जाओगे फ्रॉम, जो आपके दोनों साइड में प्रेजेंट आपको, सबसे पहले हम चिन में आएंगे तो चिन यहाँ पे सबमेंटल लिम्फ नोड्स, फिर मैंडिबुलर, बाद यहाँ पे सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, तो देख सकते हो ये एक सर्कल कर रहा है, ये भी आउटर सर्कल फ्रॉम चिन टू डीप। पेरिफेरल में भी 2, आउटर और सर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल। तो ये सब आपके आएंगे, ये आपके आएंगे पेरिफेरल लिम्फ, और बाकी लिम्फ नोड्स भी ड्रेन करते हैं। तो अब इस डायग्राम में अगर देखो तो सब मैंटल दिख रहा है आपको, फिर सब मैंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल। तो इनको और भी बाकी एक्सटेंशन लिम्फ नोड है, इसको हम पेरीसर्वाइकल, ये सर्वाइकल कॉलर भी बोलते हैं, पेरीसर्वाइकल कॉलर। ये आपके नेक के अराउंड एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। अब इसको कौन कौन इसमें ड्रेन करते हैं, इसके एक्सटेंशंस क्या है, अब इस डायग्राम में देखो, इंफ्राऑर्बिटल है, फेशियल है, के फेशियल नोड इसमें ड्रेन करेगा। इसके अलावा करते हैं और एंटीरियर सर्वाइकल भी इसमें ड्रेन करते हैं, ये भी इनमें ड्रेन करेगा, ये पेरीसर्वाइकल कॉलर में आउटर सर्कल। इनर सर्कल में जो लिम्फ नोड्स है, इस ये बेसिकली डीप सर्वाइकल फेशिया के इन्वेस्टिंग लेयर के डीप में होता है, इट विच लाइज डीप टू द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब देखो कौन कौन से मसल हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे और होता है जो इस डायग्राम में मेंशन है, इंफ्राहायोइड नोड्स, इंफ्राहायोइड नोड्स, फिर आएगा नोड्स, पैराट्रेकियल नोड्स, और एक लास्ट में आता है रेट्रोफेरेंजियल। ये आपका, ठीक है, आउटर सर्कल और इनर सर्कल टू ऑक्सीपिटल एरिया, जो पेरीसर्वाइकल कॉलर फॉर्म हुआ है, प्री ट्रेकिया के अराउंड ही है ये, ठीक है, इसके पोजीशन। ठीक, अब ये में एक एग्रीगेटेड मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू क्या प्रेजेंट होता है आपका, टॉन्सिल। ठीक है, उस टॉन्सिल, ये जो टॉन्सिल है जहाँ पे जस्ट आपका एयर ऑफ फुट, इसोफेगस और ट्रेकिया स्टार्टेड मास यू कैन सी, जो टॉन्सिल्स आपके होते हैं, ये यहाँ पे रिंग, ठीक है, वॉल्डेयर्स लिम्फ, यहाँ पे मिक्स से टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं। टंग, लिंगुअल टाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल एंड फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल, टंग,
फॉर्म अ रिंग, दिस इज नोन एज वॉल्डेज रिंग है, ठीक है, सर्कल के उससे मिलके बनता है। सो दिस इज योर वॉल्डेज रिंग, ये ध्यान रखिए। ओके, तो अभी हमने डिस्कस क्या किया, दो चीजें डिस्कस किया हमने। पेरिफेरल लिम्फ नोड में बोला 2 सर्कल है, चिन टू ऑक्सीपिटल, इसके अंदर इनर सर्कल में ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये करोगे में, अब इस डायग्राम में देखो आउटसाइड यहाँ पे एक IJV के अलोंग लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। मैंने IJV के अलोंग, उसके अलोंग वहाँ पे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके टर्मिनल लिम्फ नोड्स होते हैं। ये IJV के पूरे कोर्स के अलोंग दिखाया है इसमें, और इसके अलोंग यहाँ पे जो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, क्योंकि ये फाइनली उसी में ड्रेन करेंगे, ठीक है। सो दिस आर योर टर्मिनल लिम्फ नोड्स। अब इसको डीप टर्मिनल लिम्फ नोड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओमोहॉइड के लेवल के ऊपर, ओमोहॉइड के अबो जो लेवल है, सुपीरियर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट बेली ऑफ ओमोहॉइड के नीचे जो प्रेजेंट है वो है लोअर ग्रुप, उसको हम बोलते हैं जुगलो ओमोहॉइड लिम्फ नोड, ठीक है। जो आपका बेसिकली जुगलो डाइगेस्ट्रिक था, अपर ग्रुप था, वो उसके अपर वाले रीजन को पूरा सप्लाई करेगा, मतलब वो ड्रेन करेगा लिम्फ, जैसे कि पैलेटाइन टॉन्सिल, तो ये लिम्फ नोड ऑफ दी टॉन्सिल कहलाता है। और ओमोहॉइड के जो नीचे आएगा, ओमोहॉइड के नीचे वो जुगलो ओमोहॉइड, वो बेसिकली आपके टंग को ड्रेन करेगा, लिम्फ नोड ऑफ दी टंग इट इज़ नोन एज, ठीक। कुछ याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वर्चुअस लिम्फ नोड, जो सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स थे, ठीक है। सुप्रा क्लैविकुलर फोसा में, वहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियन वेन से रिलेटेड, वहाँ दैट वाज योर वर्चुअस लिम्फ नोड, ठीक होते हैं वर्चुअस लिम्फ नोड। ये वहाँ पे हमने भी डिस्कस किया था। ये जो वर्चुअस लिम्फ नोड है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स। क्यों? क्योंकि क्लिनिकली ये आपका मेटास्टेसिस का बहुत कॉमन साइट होता है स्टमक कैंसर के लिए, ठीक। मेटास्टेसिस का बहुत कॉमन साइट होता है सुप्रा क्लैविकुलर जो लिम्फ नोड्स हैं, विच आर नोन एज वर्चुअस लिम्फ नोड्स, ठीक है। जुगलो बैली के ओमोहॉइड के अबो, ये बेसिक पूरे पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्टिव IJV फेशियल वेन, इसके अलोंग वहाँ पे पूरे स्कैटर्ड है, ठीक है। ओमोट है वो डीप में ना, हम अभी टर्मिनल लिम्फ नोड्स की बात कर रहे हैं, डीप टर्मिनल लिम्फ नोड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, और उसके नीचे जस्ट आएगा जुगलो ओमोहॉइड। तो ऊपर वाला बेसिकली टॉन्सिल उसमें ड्रेन करता है, क्योंकि इनर में आपने देखा था आउटर इनर, और इनर के भी अंदर टॉन्सिल्स थे, तो ये सारे ड्रेन करके उसी में जाएंगे, तो वो आएगा आपका जुगलो डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। समझ में आया? अब हाँ, मैं जो एक बात बता रही थी, वर्चुअस लिम्फ नोड जो सुप्रा क्लैविकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर ऑफ स्टमक कैंसर का, ठीक है, सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत आए वर्चुअस लिम्फ नोड बहुत ऑफन पैल्पेबल फील होता है, यहाँ पे पेनफुल भी होता है, पैल्पेबल इजीली। अब हम इसके क्लिनिकल कोरिलेशन में आए। चलो अब लॉजिकल ने क्या देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको हर बॉडी में हम हर पार्ट में लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं, जैसे ब्रेस्ट, ये हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम इनको अगर तो हम बेस्ट है तो सर्जिकल नेक डिसेक्शन जो होता है, बेसिकली आपके नेक रीजन के जो आपके ये लिम्फ नोड्स हैं, उनको जब आप इंक्लूड, जो आपके मैलिग्नेंट लीजन के एक्सक्लूड, अब सर्जन्स इसको अब किस लेवल पे रिमूव करें। हमने तो एक स्टडी पर्पस से पहले बोल दिया कि पेरिफेरल है, टर्मिनल है, पेरिफेरल में भी बोल दिया, टर्मिनल में चलो हमने स्टडी पर्पस से बोल दिया ओमोहॉइड, क्योंकि हमने अपने स्टडी पर्पस से दे दिया, बट अकॉर्डिंग पोजिशन इनटू 7 लेवल्स, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ये आपके सर्जरी में आगे पूरा आएगा, हर चीज़ आगे डिस्कस होगी है में कौन से लेवल्स होते हैं। टोटल 7 लेवल्स आर देयर, एकदम सिंपल से। पहला लेवल जो आउटसाइड में सबमेंटल और सबमैंडिबुलर, ठीक है। सेकेंड लेवल IJV के रिलेशन में अपर पोर्शन में जो प्रेजेंट है। थर्ड लेवल जो मिडिल थर्ड ऑफ IJV प्रेजेंट है, मिडिल में। थर्ड फोर्थ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में जो प्रेजेंट है। सर्कमेंट जो होता है वो लिम्फ नोड्स आपकी जो प्रेजेंट है सुपीरियर मीडियस्टेनम में। तो इनका नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी विजन। तो 7 लेवल्स होते हैं, को हम रिमूव करते हैं, तो दैट इज नोन एज योर रेडिकल नेक डिसेक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर क्लासिकल रेडिकल नेक डिसेक्शन, ठीक है।
क्लासिकल नेक डिसेक्शन का फीचर होता है, इसमें ये ध्यान रखना प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल, सुपीरियर मीडियल स्टर्नम में यू आर नॉट गोइंग टू टच दैट पार्ट। उसके लिम्फ नोड्स को जब रिमूव कर देते हो, इंटरनल जुगुलर वेन और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को रिमूव कर रहे हो, तो दैट इज योर क्लासिकल रेडिकल नेक डिसेक्शन। अब यहाँ पे अगर आपने लेवल 1 to 5 के नोड्स को सभी को रिमूव कर दिया बट स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड आई बचा दिया, तो दैट विल बी योर मॉडिफाइड सर्जरी है, ठीक है। वी ऑप्ट फॉर मॉडिफाइड हैं सेवी और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को मूव करते हैं, तो दैट हेलो आया, ठीक है। चलो आपको अब रेडिकल नेक डिसेक्शन समझ में किया, साथ में स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, आईजेवी, स्पाइनल। लेकिन हमारे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, आईजेवी और स्पाइनल को छोड़ के अगर आप कर रहे हो तो वो होगा सेलेक्टर्नल। लास्ट हम रिवीजन भी करेंगे, अब सिर्फ हम उनके रिलेटेड क्लिनिकल। बेसिकली सर्जन्स में बहुत एक गाइड होता है फॉर द सिर्फ आईजेवी को डिटेक्ट करना है, तो आईजेवी के मतलब एक तरीके से आईजेवी विल एक्ट एज अ गाइड है। आपका आईजेवी है ये बहुत इजीली इट कैन बी कैलकुलेटेड। सुप्रा क्लैविसा है उसके अलोंग आप इजीली इसको कैलकुलेशन आप इसके कर सकते हो, ठीक है। एवियन ये आपका जो मीडियल थर्ड ऑफ क्लैविकल होता है बिल्कुल पोस्टीरियर, तो अगर आप इसको कैथराइज करना चाहते हो तो बहुत इजी है। जो आपका मीडियल 1/3 मीडियल और लेटरल थर्ड, इसके जो मीडियल और लेटरल थर्ड का जॉइंट होता है मतलब क्लैविकल का, उसके जस्ट पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो सुप्रा क्लैविकुलर अप्रोच हो या इंफ्रा क्लैविकुलर अप्रोच, दोनों अप्रोच से आप सब क्लेवियन वेन को कैथेटराइज कर सकते हो। आप चाहे अप्रोच करो या उसके इंडस अप्रोच करो, तो उससे आप इजीली सब क्लेवियन वेन को थ्रोम्बोसिस, इवन आप अगर आपको याद है इसमें डिसेक्शन हुआ था उसमें भी सब क्लेवियन वेन का थ्रोम्बोसिस जो होता है उसका एक क्लिनिकल फीचर होता है। पॉइंट या अपर लिम्ब का यूज़ करते हो उसके स्पेशली उसके जस्ट बाद अगर आपके अपर सिग्निफाइज आपका वहाँ पे इट विल फीचर होता है, ठीक है। सो सब क्लेवियन सुपरफिशियल टेम्पोरल पल्स, आपको अगर ध्यान हो तो टेम्पोरल फ्रंट ऑफ द ट्रैगस में प्री ऑरिकुलर रीजन में अगर आप तो यू कैन पल्स ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, एनेस्थेटिस्ट को यूजुअली जब रेडियल पल्स अवेलेबल नहीं होता तो दे सर्व यहाँ पे वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के पल्स को चेक करते हैं। सो दिस सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज नोन एज एनेस्थेटिस्ट आर्टरी, ठीक है। अगर रेडियल पल्स नहीं, एक और चीज़ जो हमने देखी थी सुपरफिशियल टेस्ट था, यूजुअली बोल्ड एज जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं या बाल्ड पर्चरस और डायलेटेड वेसल देख सकते हो, तो दैट। नेक्स्ट इज योर कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कहाँ फील होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी वर्टिब्रा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस का एंटीरियर प्रोमिनेंट कैरोटिड पल्स, ये जो एंटीरियर ट्यूबरकल साइकिल वर्टिब्रा का वो इट इज नोन एज द कैरोटिड ट्यूबरकल, ठीक है। तो इस पोर्शन पे आपको मोस्ट कांस्टेंट एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, ठीक। नेक्स्ट इज सर्वाइकल रिब। सर्वाइकल रिब हमने थोरैक्स में और इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है सर्वाइकल रिब, क्योंकि सर्वाइकल रिब क्या कर सकता है, सबक्लेवियन आर्टरी को टीरर स्कैलेनस मीडियस मसल के बीच में पास होता है ना वहाँ से सर्वाइकल रिब, तो वहाँ होता था, ठीक। तो यू शुड नो कि सर्वाइकल रिब क्लिनिकल अगर आपको ध्यान हो तो क्लिनिकली हम कैसे टेस्ट करते थे, पेशेंट के चिन को करने बोलते थे अफेक्टेड साइड में डीप ब्रेथ के साथ, जो एटसेवियन आर्टरी है सबक्लेवियन आर्टरी है उसमें वीकनेस एंड पेन इन दी अपर लिम्ब, ठीक। एक होता है आपका डिस्फेजिया लुजोरिया कि जो कभी कभी जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी जैसे एओर्टा से अराइज होती है, अब अगर डिसेंड। नेक्स्ट इज योर सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। वहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी निकली थी फर्स्ट पार्ट से और वर्टिब्रल आर्टरी बनाई थी। कभी कभी क्या होता है कि जो वर्टिब्रल आर्टरी का कमेंसमेंट हो इस साइड कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अब यहाँ इस साइड से इस साइड आपको ऑब्वियसली इजीली फ्लो कंपनसेट है, एवियन आर्टरी से होते हुए ब्रेन को जानी चाहिए थी, वो ब्रेन को ना जाके दूसरी साइड की वर्टिब्रल आर्टरी को, इस सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ठीक है। सो दिस आर योर क्लिनिकल कोरिलेशन। हमने फाइनली क्या क्या रिवाइज किया है, में क्या क्या देखा, स्टार्ट करो। सब ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। ब्लड वेसल में आगे सबक्लेवियन आर्टरी राइट ट्रंक 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सर्वाइकल ट्रंक
वर्टिब्रल आर्टरी याद रखना, सबक्लेवियन आर्टरी के इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस, फिर पार्ट फोरामेन ट्रांसवर्सियन से निकल के फोरामेन मैग्नम तक थर्ड पार्ट। फोरामेन मैग्नम में अंदर जब जाती है तो लोअर बॉडी में इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, कोस्टोसर्वाइकल, थायरोसर्वाइकल ट्रंक एंड डॉटरी इज द ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। लेफ्ट कॉमन क्या डिवाइड होती है दो में, इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कितनी 8 ब्रांचेस, 3 2 1 एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। एक ब्रांच होगी इसकी मीडियल आर्टरी और 2 टर्मिनल ब्रांचेस, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। डायग्राम अब अगर इसको आप देखोगे फर्स्ट डायग्राम और रही है, ठीक है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के 4 पार्ट्स हैं, सर्वाइकल, पेट्रस, कैवर्नस और सेल, ये पार्ट्स हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो उसका बिटवीन द एक्सटर्नल स्टाइलोग्लॉसस मसल, स्टाइलोफेरेंजियस मसल और जो आपका सबक्लेवियन आर्टरी का आर्च होता है उसके जस्ट नीचे में आपका सबक्लेवियन वेन का आर्च होता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इसमें है पढ़ना। इसका कंटिन्यूशन नीचे जाएगा, फिर ड्रिंक करेगा राइट सबक्लेवियन अनियन के साथ फॉर्म करता है ब्रेकियोसेफेलिक सुपीरियर बल्ब, इंफीरियर बल्ब, इसकी सारी ट्राइब्यूटरीज, वो आपको ये याद हो जाएगा। आर्टरी, ठीक है, तो कॉमन कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व को। डीप सर्वाइकल में आपका क्या आएगा, जुगलो डाइगेस्ट्रिक और जुगलो। आप एक बार रीड करो बुक से, आपको फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और आईजेवी को बहुत अच्छे से आप पढ़ जरूर लें।